Hello everyone, students. Today we are going to complete the remaining part of the chapter A Truly Beautiful Mind, that is chapter 4. Last time we read till the special theory of relativity of Einstein, and in which he gave a formula which describes the relationship between mass and energy, that is E is equal to mc square, where E stands for energy, M for mass, and C for the speed of light in a vacuum where there is no air. Okay? Now, here he had given a very good example that when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes, and when you sit with on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is said to be relativity. So to explain this formula of relativity, he had given this example here. Now today we are going to move towards the point, the paragraph 10. Okay, so let's start. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. It means when he was dealing with the most difficult part of his problem in physics, at the same time his private life, when he got married to he wanted to marry with Mileva, was unraveling. Unraveling matlab starting to fail, not getting successful. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. It means Albert wanted to marry Mileva, but after finishing his studies, but his mother was not agreed to this thing because she thought that this girl Mileva was 3 years older than her son, was too old for him. Now उसकी मदर ये नहीं चाहती थी कि वो मिलेवा से शादी करे because मिलेवा was 3 years elder than Einstein, and she thought that she was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. It means when she was against the marriage of these two people, this couple, she said that she was also bothered by Mileva's intelligence. Now Mileva was also quite intelligent, just like Einstein, and she said that she is a book like you, means she is as same in nature as Einstein. So what Einstein did, he put the wedding off. It means उसने उस समय अपनी शादी को टाल दिया. The pair finally married in January 1903. ठीक है. At last these two people decided to get married in 1903. उन्होंने शादी कर ली and they had 2 sons. Now after having 2 sons, a few years later the marriage faltered. यानी कि कुछ सालों बाद धीरे धीरे उनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगी थी. दे वर नॉट हैप्पी विथ देयर मैरिड लाइफ. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. Now as we have already read that Mileva was also a very intelligent lady, so she thought that she is losing her intellectual ambition. Now being so intelligent, involving herself in a married life, she was not happy. वो अपनी शादी की लाइफ से खुश नहीं थी क्योंकि वो यूँ सोचती थी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ और मेरा इंटेलिजेंस कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, और मैं इस लाइफ में ही बिज़ी हो गई हूँ. तो वो अपने आप को इस फैमिलियर लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती. तो इस तरह से उनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार आफ्टर प्रोलॉन्ग फाइटिंग, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. तो आखिर में इन्होंने 1919 में एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया. आफ्टर दैट आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. फिर आफ्टर गेटिंग डिवोर्स इन 1919, इन द सेम ईयर इन 1919 he got married to his
cousin named Elsa. Okay. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. It means when after getting married to his cousin, his life changed. Okay. He coincided with his rise to world fame. मतलब ये कि शादी के बाद राइज टू वर्ल्ड फेम यानी धीरे धीरे वो फेमस होने लगे, काफ़ी नाम होने लगा उनका। 1915 में he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. It means in 1950 में जब उन्होंने अपनी एक पब्लिशमेंट निकाली जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की, जो काफ़ी provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1990 brought proof that it was accurate. मतलब ये कि उन्होंने जो ग्रेविटी की एक थियोरी निकाली थी, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कि एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, यू नो, व्हेन द सन और मून कम इन द वे ऑफ ईच अदर. सो एट दैट टाइम इट वॉज प्रूव्ड कि इन्होंने जो अपनी थियोरी बताई है रिलेटिविटी की, ग्रेविटी की, डेट एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज़ रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस थिंग वॉज एक्यूरेट, मतलब ये सही निकली उनकी थियोरी. ये प्रूव हो गया था कि उन्होंने जो थियोरी दी है ग्रेविटी की वो राइट है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है. आइंस्टाइन हैड करेक्टली calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. It means, if you could see, हम from the earth the two stars. Okay, now when the light of these stars is reflected, तो उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होकर हमारी तरफ आता है. ठीक है, उस स्टार की जो लाइट का डायरेक्शन है वो चेंज होकर हमारे पास आता है. यानी हम जो देख रहे हैं उस लाइट स्टार से जो लाइट आ रही है एक्चुअली वो उसकी डायरेक्शन नहीं है. बट यू कुड रीड हियर द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड. डिफ्लेक्टेड मतलब चेंज डायरेक्शन because it hit something. Okay, through the sun's gravitational field. Okay, means that thing gets deflected when it hits the sun and the direction of the light is changed. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और उनकी इस चीज़ को काफ़ी एक्सेप्ट किया गया लोगों के थ्रू, और उनके इस न्यूज़पेपर में इनकी जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थी उनको एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. नाउ एज यू पीपल नो, एल्फ्रेड नोबेल, हु वॉज द फेमस साइंटिस्ट ऑफ स्वीडन, ही स्टार्टेड दिस नोबेल प्राइज़ इन 1895. ओके, और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था. ठीक है, और ये उनकी ही विल पे एस्टैब्लिश किया गया था. एल्फ्रेड नोबेल की विल के ऊपर ही वांटेड टू हैव दिस नोबेल प्राइज़. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस प्राइज़ इज़ नोबेल प्राइज़, एंड इट वाज फर्स्ट गिवन इन 1901, and 1921 was the year when Einstein received this Nobel Prize. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. It means फिर तो कंटिन्यूस बहुत सारे ऑनर्स और बहुत सारे इन्विटेशंस पूरे वर्ल्ड से उनके पास आने लगे. बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट वगैरह हर तरफ उनकी काफ़ी पहचान और नाम होने लग गया. एंड लॉडेड मीन्स praised by the press also. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. Now when Nazis came to power in Germany in 1933, Nazis
का जो रूलर था, फेमस रूलर, द नेम एडोल्फ हिटलर. And I think you would have read about this person in your history also, what kind of person he was. तो this person, इसका पावर बढ़ने लग गया था जर्मनी में, इसलिए आइंस्टाइन ने यूएस जाना डिसाइड किया. तो वहाँ से इमिग्रेटेड होकर ये यूनाइटेड स्टेट्स में आए. 5 years later, 5 सालों बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन had American physicists in an uproar. It means कि बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है. और इसमें जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियर फिजन मतलब अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, यानी बहुत सारे अमेरिकन फिजिस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि इसका मतलब इसका यूज़ हो न्यूक्लियर बॉम्ब का, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ अ काइंड ऑफ बॉम्ब जो सिर्फ ना उस जगह पर बल्कि उसके आसपास के एरिया को भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्ट करते हैं. इट इज़ अ मेन बिग रीज़न फॉर डिस्ट्रक्शन, नॉट ओनली इन दैट एरिया बट इवन द सराउंडेड एरिया ऑफ दैट. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Now, fascism is a dictatorial concept which was बेनेटो मुसोलिनी नाम के एक पर्सन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, यूरोप में. और ये जो कंसेप्ट है फासिज्म, ये इटली में यूरोप में स्टार्ट हुआ था बाय द रूल ऑफ बेनेटो मुसोलिनी. जिस तरह से एडोल्फ हिटलर नाजिस का है, उसी तरह से फासिज्म का रूलर था, फेमस रूलर बेनेटो मुसोलिनी, ठीक है. तो इस वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट यूरोप से भागकर यूएस चले गए, ठीक है. नेक्स्ट सी, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट. अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट. अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. It means आइंस्टाइन ने अपने एक कलीग के रिक्वेस्ट पर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 में, जिसमें उन्होंने ये वार्न किया कि इस न्यूक्लियर फिजन को, इस एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर रोक लगाई जाए, इसकी यूज़ पर रोक लगाई जाए. बिकॉज अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, यानी एक सिंगल बॉम्ब अगर किसी पोर्ट पर एक्सप्लोड किया जाए, ब्लास्ट किया जाए, तो वो ना सिर्फ उस पोर्ट को डिस्ट्रॉय करेगा लेकिन उसके आसपास की सराउंडिंग टेरिटरी को भी बर्बाद कर देगा. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. तो इन्होंने, द अमेरिकन्स ने इस एटॉमिक बम को अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में डेवलप किया. और फिर हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिकन्स ने ये बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बहुत एक्सेस डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ तो आइंस्टाइन को, ही वॉज डीपली शेकन, ही वॉज क्वाइट internally disturbed with this thing. This time he wrote a public missive. You know, missive is a letter, specially long and official. एक official letter होता है जो उसने यूनाइटेड नेशंस को लिखा. अब ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये उस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस की. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact.
जिस तरह से उसने जो रूज़वेल्ट को लेटर लिखा जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसी तरह से इस लेटर का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. लेकिन कुछ सालों बाद, आफ्टर अ डिकेड, दिस पर्सन गॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. ये पर्सन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. एजिटेटिंग मतलब एक मेन एजेंडा बनाना, ठीक है. और इनका एक ही पर्पस था, इस तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स, आर्म्स, एम्यूनेशन नहीं बनाए जाएं, ठीक है. एंड ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. यानी कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट माइंड का पर्सन नहीं था. ही वॉज नॉट अ पर्सन हैविंग ओनली अ साइंटिफिक माइंड, बट ही ऑल्सो fought for the peace and freedom of people. He was the world citizen, advocate of peace all over the world. He don't want any kind of war at that time. So उसने बहुत कोशिश की, और जिस तरह के उन्होंने एफर्ट्स किए वॉर को रोकने के, तो इट वाज रियली अ गुड थिंग डैट उन्होंने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा और पूरी ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. When Einstein died in 1955 at the age of 76, when this person died, he was celebrated as a visionary. विजनरी मतलब वो पर्सन होते हैं जो इन एट प्रेजेंट की कंडीशंस को देखकर ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या बुरा हो सकता है. और आइंस्टाइन जो थे वो इसी काइंड के पर्सन थे. जिस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो जानते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंट होना, डेवलप होना वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है. ये इन फ्यूचर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन क्रिएट करेगा. एंड इट रियली हैपेंड, जो जो उन्होंने कहा. दैट्स वाई ही सेड टू बी अ विजनरी. विजनरी इज़ अ पर्सन who think about the future in an original and intelligent way. And so he was a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो एक जीनियस होने के अलावा वो एक बहुत ही मतलब पीस और फ्रीडम और डेमोक्रेसी वाले पर्सन थे, जो लोगों के अच्छे के बारे में भी सोचते थे. ओके, सो that's why the name of the chapter here is A Truly Beautiful Mind. So being beside a scientist, he was also having a beautiful mind who had also diverted himself towards humanity. Okay, so thank you.